The Laburnum Top by Ted Hughes. Laburnum means a tree with poisonous seeds. Tree with poisonous seeds. The poem Laburnum Top celebrates the pious beauty and serenity of nature. Its 4 seasons are marked with their own colors, music, and movements, and each season spellbound us with its specific characteristics. The autumn season is marked with its silence and serenity, but it has its own motion, music, and thrill. The Laburnum Top is symbolic of this peace and serenity which befalls nature during the autumn season. But this serenity is disturbed with the arrival of the goldfinch, who has built her nest there. As she feeds her young ones, there is a commotion and veritable bedlam of their chirpings. Having fed the young ones, the bird once again soars away into the infinity of the sky, leaving the laburnum tree silent and still again. The laburnum top is silent, quite still, in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. The laburnum tree stands silent and still. Its yellow flowers appear to be in adjust with the yellow sunlight in afternoon of the September month. With the onset of the autumn season, its leaves are yellowing and its seeds have fallen. क्या लेबनम ट्री क्या है? ये ऑटम सीजन, इसे क्योंकि ऑटम सीजन में क्या होते हैं, पत्ते झड़ते हैं, लीव्स क्या होते हैं, पत्ते येलो होते हैं, येलो कलर के होते हैं, और सीड्स जो है उनसे गिरते, नीचे गिरते हैं, फ्रूट नीचे गिरते हैं। और एक किस चीज का सिंबल है कि इसका मतलब कि ये कौन सा सीजन चला है, ऑटम सीजन चला है, जिस वक्त जो है ये ट्री कैसा है, लेबनम ट्री कैसा है, बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल है, वहां पर कोई भी उसके ऊपर नहीं है। लेबनम ट्री एक, इसमें पॉइजनस जो उसके इसके फ्रूट होते हैं, और इसी वजह से ये गोल्डफिंच जो वर्ड है, एक छोटा जो सिंगिंग वर्ड है, ये जो है इसीलिए लेबनम ट्री में अपना नेस्ट बनाते हैं, ताकि दूसरे पक्षी, दूसरे जो एनिमल्स वहां पर जो है ना आए, क्योंकि पॉइजनस होता है, इसलिए जो है अपनी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के से वो जो उस पर अपने वो घोंसला बनाती है। मैं आपको जनरली बता रहा हूं। Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up, of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. Twitching. Twitching means sudden movement. Sleek,
smooth. Chittering, twittering. Twittering means series of chirping. Series of chirping. Tremor, vibration. Tremor, vibration. Here the poet says that the peace and serenity of this laburnum top transforms into a stormy commotion when the goldfinch comes and perches at a branch end with a twitching chirp. क्या उसकी जो सेरेनिटी, जो साइलेंस जो है, जो ट्री अभी बिल्कुल चुप था, जैसे वो गोल्डफिंच वहां पर आती है, उसकी जो है साइलेंस, जो उसकी क्वाइटनेस, जो उसकी चुप्पी क्या हो जाती है, उसका जो सन्नाटा जो वहां पर छाया था वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है. जैसे गोल्डफिंच वहां पर, एज गोल्डफिंच कम्स देयर एंड सिट्स एट ब्रांच एंड विद अ ट्विचिंग चर्प, शी गिव्स अ startled look and then very cautiously enters the thickness of the tree. There is sudden commotion as she feeds her young ones in the nest. The whole tree seems to tremble and resound with the twittering of the wavy birds and the sound of their wings flapping as they bully their mother for food. As they pursued their mother for food. क्या होता है, जैसे ही वो गोल्डफिंच वहां पर आती है तो उस लेबरनम टॉप, उस ट्री के जो उसकी जो साइलेंस क्या हो जाती है, वो भंग हो जाती है, वो खत्म हो जाती है. वो जो वर्ड गोल्डफिंच वहां पर बड़ी सावधानी से वहां पर जो आती है, और जो थिकेस्ट पार्ट, उस ट्री का जो थिकेस्ट पार्ट होता है उसके अंदर वो जो है चली जाती है. और वहां पर अचानक क्या होता है, अचानक वहां पर जो चुप्पी थी वहां पर अचानक वहां पर क्या होता है, कमोशन, हलचल वहां पर होती है. क्योंकि वो जो नेस्ट जो बनाया था, जो बच्चे जो थे, वो जो उसके जो चिड़िया के बच्चे थे, वो जो है चहचहाना वहां पर शुरू करते हैं. और पूरा ऐसा लगता है जैसा कि पूरा जो है, जो लेबरनम ट्री, पूरा वृक्ष क्या है, इट लुक सीम्स टू ट्रेम्बल एंड साउंड्स विद ट्विटरिंग ऑफ द बेबी बर्ड्स. और ऐसा लगता है पूरा जो है वृक्ष क्या हो रहा है, उनके चहचहाने से, उनके जो चहचहार से क्या ऐसा लग रहा है कि पूरा वृक्ष क्या एक मशीन का रूप धारण कर लिया. वो जो पूरा वृक्ष क्या हो रहा है, ट्रेम्बल हो रहा है, जैसे कांप रहा. इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली. शी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लॉट्स आउट टू अ ब्रांच एंड showing her buried face identity mask. Then with eerie delicate whistle chirp whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. Buried means marked with strips. जो उसकी क्या आइडेंटिटी, मार्क विद स्ट्रिप्स, उसके जो है स्ट्रिप्स उसके चेहरे पे होते. eerie, strange, unusual और supernatural. It is the young ones in the goldfinch family who had started up their chitterings and trilling at the arrival of their mother. The mother feeds them all to their fill. Then she comes out, skipping to the end of a branch. She shows her buried face, stripped face, which serves as her identity mask. अब क्या होता है, जैसे जब वो पहले आई थी, वो गोल्डफिंच जब पहले आई थी, वो क्या, वो थिकेस्ट पार्ट, जो थिक पार्ट था उसका, जो घना पेड़ का जो घना पार्ट था, वहां पर वो घुस गई थी, जहां पर नेस्ट बनाया हुआ था. और अब क्या, उसको अब बच्चों को वो जो है, जब वहां पर वो पहुंचती है तो उनके बच्चों के दे स्टार्ट चिटरिंग एंड ट्रिलिंग. जैसे उनकी मदर वहां पर पहुंचती है, द मदर फीड्स देम ऑल टू, मदर जो है उनको जो है भरपेट खाना खिलाती है. देन शी कम्स आउट स्कीपिंग टू, तब वो जो है उनको खाना खिलाने के बाद, उनको जो है वो दाना देने के बाद जो है वो गोल्डफिंच कहाँ आती है, शी कम्स आउट स्कीपिंग टू द एंड ऑफ ए ब्रांच. और उसको जो है उस पेड़ की ब्रांच पर जो है वो उठकर वहां पर आती है, और वो खुद को वो अब जो है वो दिखाई देती है. नाउ शी शोज हर बेरेड फेस, स्ट्रिप्ड फेस. अब जो अपना जो उसका जो स्ट्रिप्ड फेस है, जो उसकी आइडेंटिटी है, मतलब क्या उस स्ट्रिप फेस से उस गोल्डफिंच को पहचाना जा सकता है, उस वर्ड को
उसके स्ट्रिप्ड फेस की वजह से ही पहचाना जा सकता है। अब जो है वो जो है बाहर आती है और ब्रांच एंड में जब वो बैठती है और वो अपना जो स्ट्रिप्ड फेस जो है वो बैरेड फेस जो वो दिखाती है, जो कि उसका क्या है आइडेंटिटी मास्क है, जो कि उसकी आइडेंटिटी जो उसकी आइडेंटिटी बताता है। Then with eerie delicate whistle chirp whisperings she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. After having fed her young ones, the goldfinch comes out of the tree and flies away into the infinite sky. It makes sad, delicate, whistling chirps and as it flies away. The laburnum once again becomes all quiet and silent. It seems as if it had become empty. अब क्या होता है, जैसे ही अब वो क्या गोल्डफिंच अब क्या अपने बच्चों को जो दाना खिलाने के बाद, खाना खिलाने के बाद वो क्या आती है, वो ट्री से बाहर आती है एंड फ्लाइज अवे इनटू द इन्फिनिट स्काई, जो असीमित जो आकाश है, जो है जिस आकाश के कोई सीमा नहीं है, उस आकाश की ओर वो जो है उड़ जाती है और दोबारा वो गोल्डफिंच ट्री क्या आता है, वो गोल्डफिंच ट्री वैसा ही क्या हो जाता है पहले की तरह। जैसे स्टार्टिंग में गोल्डफिंच स्टार्टिंग में जैसे लेबरनम ट्री स्टार्टिंग में कैसे था, स्टार्टिंग में हमने देखा था लेबरनम ट्री कैसा था, इट वॉज स्टैंड साइलेंट एंड स्टिल। और अब जो है और जब चिड़िया वहां से चली जाती है दूर आसमान आकाश पर, जो जब उड़ती है तो वो पेड़ दोबारा कैसा हो जाता है, पहले की तरह ही वो साइलेंट और स्टिल जो है पहले की तरह वो वैसा ही साइलेंट हो जाता है। She leaves the laburnum tree once again shrouded in its own silence and serenity. अब जो है उस पेड़ को वो दोबारा वैसे ही छोड़ती है जैसा वो पहले था, बिल्कुल साइलेंट था। अब वो चिड़िया वहां से चले जाती है। Literary devices used in this poem. Laburnum top. Laburnum top is a symbol of peace and serenity, which is an integral part of nature. Yellow September, leaves yellowing, these are symbols of autumn season, and passing age, which brings in its wake decay and loneliness. Goldfinch is a symbol of liveliness. Meaning of startlement, amazement.